मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर वंदना पाठक जी से, इट्स रोल इन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक हेल्थ केयर ये टॉपिक है। चेयरपर्सन के रूप में प्रोफेसर अर्पिता सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, डॉक्टर RML IMS। Namaste, sir, Director, sir, and the Dr. Amod, Mrs. Prasad, Alka Prasad, all the faculty members and their children. Today, I have been told to talk upon Swarna Prashan and its role in preventive pediatric healthcare. ओम नमो भगवती धनवंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। जय धन्वंतरी। So the principle of Ayurveda is स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशवनम च। जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर वो रोगी हो जाए, उसमें कोई विकार आ जाए, तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करना। अभी स्वर्ण का क्या रोल है पीडियाट्रिक प्रिवेंशन में, डिजीजेस में, तो आज हम उस पर बात करते हुए सबसे पहले लेट्स लर्न व्हाट इज स्वर्ण। It is also known as Swarna Bindu Prashan. It is also known as Swarna Prashan. It is an ancient Ayurvedic immunization technique involving oral administration of processed gold. Processed gold is in form of Swarna Bhasma combined with honey and ghee to enhance the immunity and overall health in children. So Swarna Bhasma is the purified form. Madhu is honey, which is the natural it has got the natural antimicrobial properties. Ghee, in my recipe, I use the Gritmand, which is known to, it is known as Sukshmagami. It penetrates the smallest cell of the body, and the herbal extracts, which are immunomodulators or the intelligence promoters like Brahmi, Shankapushpi, Giloy, Vacha. These are optional, but ghee, madhu, and gold bhasma are always used. In my recipe, I used vacha powder, giloy sattva, along with sometimes I use brahmi grit and cow grit mand, both together. Now let's go on to the historical background. In ancient literature, in Kashyap Samhita, there is a Lehan Adhyay in which whole recipe and everything how to give it is there. So my journey of Swarnaprashan started during the COVID times. जब ये हो रहा था कि अब मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, बच्चों के इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर हो रहे हैं, पूरे में ये वायरस फैला हुआ है, तब बच्चों का क्या होगा? So we digged into Ayurveda. Myself, one of my friends, Dr. Shruti Nigam, we both worked together, and then we took out the recipe from Kashyap Samhita and started to prepare Swarnaprashan. Then I started giving it to all the children of the underprivileged portion, all affluent class, everybody, but in form of camp. And that was the times in the COVID times where I was giving prophylactic decoctions to everybody daily. Daily it was given, following all the aseptic precautions, wearing mask, and in that time only I started to prepare the Swarnaprashan. So in Kashyap Samhita, there is a detailed methodology and benefit. In Sushruta Samhita, during the newborn care, it is told about Swarnaprashan. Like as soon as the baby is born, I will tell you about it in the later slides. In Ashtang Hridaya, there is about the goal that it is a rasayan. Rasayan means rejuvenator. Traditionally, it is given in 30 days, 180 days, but it can also be given in the Pushya Nakshatra. Now, Pushya Nakshatra is a auspicious day where we Vaidyas, we collect the medicines, we as well as prepare the medicines, and we try to store the medicines during this auspicious Nakshatra. Even we instill the medicines during this Pushya Nakshatra. So, not daily, not for 30 days, not for 180 days, but at least for 27 days a year, one can take Swarnaprashan or give it to the children. I have got very good results for that. So the preparation and composition is, there are Swarna Patra, Achurna and the Bhasma, but I use Swarna Bhasma. And the Swarna Bhasma should undergo purification processes traditionally, and with modern, it should
undergo Shodhan Maran, multiple cycling heating, and the quality testing should be done by the pharmaceutical companies of Ayurveda and the Vaidyas. Only then it should be marketed and it should be taken in. I will tell you that I am full confident on two companies, Doodh Papeshwar and Jandu. I am using the gold bhasm of these two companies with very good results. The standard formulation is Swarna Bhasm 15 to 30 gram per dose, and honey 0.5 to 1 ml, ghee 2 to 3 drops, and Brahmi Bacha, Giloy Sattva, and Shank Pushpi. This is optional, though I use it in my recipes. Now here I never knew that I would have been in a session sometimes, but I had taken some pics. I had got some pics. This is a kharal which I have brought from Rajasthan, and the first pic you see is the Swarna Bhasma. After that, I added Bacha Churna, then Giloy Sattva, and then dry kneading was done for 2 to 3 hours. After the dry kneading, then the wet kneading is done after addition of ghee and honey. You can hear the sound. It is done, I think. I would need sound because later in the testimonials, sound is needed. This is the mantras being chanted and the kneading is being done. This takes about 7 to 9 hours. 7 to 8 hours कम है, 9 घंटे से कम नहीं लगता है इसको पूरा बनाने में. इसके बाद इसको हम बॉटल्स के अंदर डाल के और रख देते हैं. I would like to have my speaker please. स्पीकर से कनेक्ट कर देना. कनेक्टेड है? अच्छा ठीक है, क्योंकि इसकी साउंड आ नहीं रही ना. Now about the benefits of Swarna Prashan. The Kashyap Samhita has got a shlok, Dravyanam Lehinayam Vividasya Opdekshate Vidyasya Dhrote Drishyati Pradmukhi Lagunambuna Amartis Madhu Sarpebhyam Lehet Kanak Shishum Swarna Prashan Dvet Medhagni Bal Vardhanam Ayushyam Mangalam Punyam Vrishyam Varnyam Grahapaham Masat Param Medhavi Vyadhi Nripda Drishyate Shad Bichar se Shuttadhara Swarna Prashan Matved. So Veda Varnam is enhancement of intellect and memory, improvement of digestion and metabolism. So it is Agni Vardhan, increase in physical strength and immunity. It is Bal Vardhanam and promotes longevity and lifespan. It's Ayushyam, enhances the skin color and complexion, that is Vranyam, and it has got aphrodisiac properties. So when we give to the children till 16 years, in the later age, they don't have any problems regarding their sperms counts and the ovas, and they are children are very healthy. हिंदी में इसको पढ़ देती हूँ कि जो ये श्लोक लिखा है, इसमें लिखा है पूर्व दिशा में मुंह करके धोए हुए पत्थर पर थोड़ा पानी के साथ स्वर्ण को घिसकर मधु एवं घृत मिलाकर चटाएं. ये स्वर्ण प्राशन कहलाता है, जो कि मेधा, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला है. ये आयु को देने वाला, कल्याणकारक, पुण्यकारक, वृश्य, वन्य, ग्रह बाधा नाशक है. यहाँ ग्रह बाधा नाशक मतलब कि जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह बॉडी में लगते हैं उन सबको ये हटाता है. स्वर्ण प्राशन से बालक इस मास के अंदर मेधा युक्त हो जाता है और व्याधियों से आक्रांत नहीं होता. 6 माह यानी 180 दिन बराबर देने से शुद्धधर हो जाता है. शुद्धधर मतलब सुनकर के ही याद करने वाला कहलाता है. ये आगे की स्लाइड में भी मैंने इसको अंग्रेजी में लिख रखा है. सो हेल्थ बेनिफिट्स में boost natural defense mechanism and disease resistance. So it acts as an immunity enhancer. It promotes growth, vitality, and muscle development. It increases the physical strength. Protection against infection and pathogen. It has got antimicrobial action. It enhances the memory and intelligence and learning capacity. So it develops the cognitive properties. Improve the complexion and skin texture. So it takes care of the skin health, balances the metabolic processes and energy level. So it helps as a metabolic support. Improves digestion and absorption of nutrients. So it takes care of the digestive health. It acts as rasayan or rejuvenator. So adds to the longevity of the children. अभी आपको बताया कि अगर हम 1 महीने देते हैं 30 days,
तो परम मेधावी बनता है। और अगर हम 180 दिन बराबर उसको देते हैं तो ये स्तुतिधर बनाता है बच्चों को। इसका रोल इन प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक केयर के स्वनप्राशन अलाइज विद द WHO's emphasis on preventive health care. Even WHO says कि prevention is more important और ये उसको पूरा करता है। And early childhood interventions for optimal development and disease prevention. बच्चे में बाद में जाकर हम उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को लें, उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, उससे अच्छा ये है कि इसको हम शुरू से ही बच्चे को दें, यानी कि जब वो पैदा होता है तब एक बार, उसके बाद 6 महीने के बाद से बराबर इसको हम दें। तो इसकी जो प्रिवेंटिव एप्लीकेशन है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन स्ट्रेंथेंस इम्यून रिस्पॉन्स बिफोर इन्फेक्शन अकर, न्यूरो डेवलपमेंट सपोर्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड, nutritional support enhances the nutrient absorption and utilization, infection prevention reduces frequency of common childhood illness। वो आगे आप टेस्टिमोनियल्स में भी देखेंगे कैसे वो सब बता रहे हैं, और वो ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही लिए हैं। ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन प्रमोट्स हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो डिलेड माइलस्टोन्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो बाद में भी हम इसको दे सकते हैं, पर अगर पहले से देते हैं तो सारे माइलस्टोन्स भी बिल्कुल ठीक से रहते हैं। स्ट्रेस अडेप्टेशन हेल्प स्टूडेंट अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो ऐसे कुछ बच्चे मेरे पास आए जिनको कि कभी हंसते ही नहीं थे और चुप रहते थे, तो उन्होंने जब इसको लिया, आगे टेस्टिमोनियल आप देखेंगे, तो उन बच्चों में बहुत चेंजेस आए और वो स्वस्थ तो रहने ही लगे, साथ में वो खुश भी रहने लगे। अब ये 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोपनयन, जात कर्म संस्कार। तो मैं गर्भाधान से शुरू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्री कंसेप्शनल अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं, डिटॉक्स कर देते हैं, पंचकर्मा कर देते हैं, तो जो दोनों जने हैं जो आगे लेटर लाइफ में कंसेप्शन के लिए जाते हैं, उनकी ओवा और स्पर्म दोनों अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, तो जो प्रोजेनी होती है वो भी अच्छी होती है और उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। पुंसवन संस्कार में 2 महीने के बाद, ये पहले ये था कि ऐच्छिक संतान के लिए होता है, यानी लड़का या लड़की के लिए, परंतु इसके में नस हम लोग नाक के द्वारा मेडिकेशन देते हैं और इससे जो है वो बच्चा स्वस्थ होता है। साथ में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैं और जो बच्चों की जो स्वास्थ्य, दोनों के ऊपर ही इसका असर पड़ता है। सीमंतोनयन में हेयर पार्टिंग या बेबी शावर जिसको कहते हैं, जिसमें आजकल बेबी शावर में आपको इनविटेशन मिलता है तो उसमें बहुत सारे म्यूजिक, डांस, गाना, खाना पीना ये सब होता है, बट बेसिकली इट वाज यूज्ड टू गिव गुड वाइब्स एंड न्यूट्रिशन टू द मदर एज वेल एज द चाइल्ड। इसके बाद आता है जातकर्म संस्कार, जो कि यहाँ से स्वर्ण शुरू होता है। जैसे ही नाला छेदन होता है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड क्लिपिंग होती है, उसी समय जो घर के बड़े होते थे या जो वहाँ पर टेक केयर करने वाली लेडी होती थी, वो पत्थर के ऊपर सोडा, घी और मधु को घिसकर बच्चे को उसी समय चटा देती थी, क्योंकि उस समय जब शुरुआत थी तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स और पहला इंजेक्शन लगा दिया, ये सब नहीं होता था और बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करते थे तब। तो इस चीज़ को जब अब लागू करते हैं तो उसके असर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके बाद के और 16 संस्कार हैं, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतन, समावर्तन और विवाह इत्यादि। तो ये सारे साइंटिफिकली इनको किया जाता था और संस्कार में मंत्रों का यूज होता था, और ये मंत्र जो है वो हर स्टेज में वाइब्स अच्छे देते थे और उसको पूरी खूबसूरती से को निभाया जाता था। तो यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी फुल ऑफ वाइब्रेशंस होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि प्रसाद भगवान को चढ़ा दो, उसके बाद भोजन करो। तो हम लोग जो दवा बनाते हैं उसमें भी बराबर से मंत्रों को चलाते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साउथ की कंपनी की दवा लूँ, क्योंकि उसमें वो लोग विधिवत कलेक्शन से लेकर और बनाने तक में मंत्रों का यूज करते हैं। तो हम लोगों को इन षोडश संस्कारों को दोबारा से वापस लाना चाहिए, जिसमें कि स्वर्ण प्राशन हमने निकाला है। अब इसके अंदर जातकर्म संस्कार मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही बेबी का नाला छेदन हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप किया, उसी समय बच्चे को दे दिया जाता है। उसके बाद उसमें लेहन है, लेहन में और भी सारी मेडिसिन होती हैं, बच्चे को चटाया जाता है अगर लैक्टेशन अच्छा नहीं हो रहा है या मदर को कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय भी ये जो लेहन कर्म है वो किया जाता है एज ए सप्लीमेंट्री फीडिंग।
इसमें जो डोसेज गाइडलाइंस है वो 0 to 1 ईयर 15 मिलीग्राम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 1 to 3 ईयर्स में 20 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म, 3 to 5 में 25 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म और 5 to 12 ईयर्स में 30 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस में ये एक तो ये रसायन काल जिसको कि हम कहते हैं जब सूरज उदय हो रहा हो, कायदे से उस समय देना चाहिए और सूर्यास्त के पहले तक दे ही देना चाहिए, क्योंकि कैंप्स वगैरह एकदम सूर्य उदय के साथ बच्चों को पेरेंट्स नहीं ला पाते, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब सूर्यास्त हो उसके पहले ही दे दें। दूसरा, प्रॉपर हिस्ट्री लेना चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री शुड बी टेकन कि बच्चे को कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, वात और पित्त का अगर कोई रोग है तो ठीक है, लेकिन ऊर्ध्व जत्रुगत यानी ईएनटी का कोई प्रॉब्लम या कफ भरा हुआ बॉडी में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग पहले उसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद ही उसका स्वर्ण प्राशन करते हैं। तो अभी हमने बताया कि इसको 30 डेज तक दे सकते हैं, 180 डेज तक, पर इसकी जो हमने आयु रखी है वो 16 साल तक हम लोग उसको दे सकते हैं। इन्फेंसी में जैसे बर्थ हुआ और 1 साल तक ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से और वल्नरेबल इम्यून सिस्टम सपोर्ट है इसका। जातकर्म संस्कार हमने आपको बता ही दिया। 1 से 16 साल में जनरल हेल्थ प्रमोटर की तरह काम करता है और इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है। वो देखने में आ जाता है क्योंकि बच्चा आप देख पाते हैं कि उसका क्या है इंटेलिजेंस, और उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ग्रो करते बच्चे में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है और 12 इयर्स के ऊपर एफ्रोसेडियाक जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम उसके 16 साल के ऊपर के जितने भी बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, उनमें हम देख पाते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन ये स्टिमुलेट करता है मैक्रोफाज एक्टिविटी, इनहेंस करता है फैगोसाइटोसिस और टी और बी सेल फंक्शन को इंक्रीज करता है। इट मॉडिफाइज इम्यून रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। न्यूरोप्रोटेक्शन में जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी प्रूव दैट दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द नैनो पार्टिकल्स दे एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट्स. They have got antioxidant properties, so protects the neurons and it improves the cognitive functioning, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी रिसर्च बताते हैं कि जो इसका 28 to 35 nm का जो साइज नैनो पार्टिकल का आया है निकल के, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। इसमें जो हम घी यूज करते हैं वो मैंने जैसे पहले बताया सूक्ष्मगामी होता है, वो छोटे से छोटे सेल तक आराम से पहुंच के जो और भी हम उसमें जड़ी बूटियां ऐड करते हैं, जैसे हमने गिलोय कभी ऐड करी, ब्राह्मी ऐड करी, वचा ऐड करी, तो वो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज है उसको भी वहां तक पहुंचाता है। साइंटिफिक एविडेंस है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स शो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन पेरिटोनियल माइक्रोफाजेस, इट इंक्रीजेस टोटल प्रोटीन्स एंड सीरम आईजीजी लेवल्स, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। गोल्ड फाउंड इन प्लेसेंटा एंड न्यूबॉर्न लिवर एट बर्थ, ये रिसर्चेस बताते हैं कि हमारे इसमें जब हम आयुर्वेदा में एंटीनेटल केयर कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की अलग अलग मेडिकेशन होती है। जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें हम लोग स्वर्ण बसंत मालती देते हैं, तो मदर के वूम से ही वो हम उसको इम्यूनिटी को उसको हम इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम लोग उसको लेहन कर्म के द्वारा उसकी इम्यूनिटी को रेज करते हैं। तो जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, वो जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें उन्होंने देखा कि न्यूबॉर्न के जैसे कहीं मॉर्टेलिटी किसी कारण से कुछ हुआ कहीं भी, तो उन्होंने देखा कि ये न्यूबॉर्न के लिवर वगैरह में भी मिलता है। और जो कॉग्निटिव स्टडीज हैं उसमें ये देखा गया कि जो उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये इम्प्रूव्स द कॉग्निटिव फंक्शंस, जो आईक्यू स्कोर्स हैं वो बढ़ते होते हैं इन बच्चों में। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी टी वेले, गुडी, ठाकुर एंड नाटकर्णी, पनमाद एंड काले, जिन्होंने कि नैनो पार्टिकल पे रिसर्च करके इसके साइजेस को बताया, जो कि मैंने बताया जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ ये काम करते हैं। और हम लोग जो अब स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं इसके रिजल्ट्स को हम लोग बराबर से देख रहे हैं कि जो काश्यप संहिता में लिखा था वो बिल्कुल अच्छा रहा। और मेरा तो जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को दिया है वो सब बहुत खुश रहे, बहुत इन्फेक्शन प्रोन नहीं रहे। उसके आगे टेस्टिमोनियल्स हैं तो 1-2 मैंने लिए हैं बस। इसमें बस सेफ्टी और क्वालिटी गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम स्वर्ण भस्म ले रहे हैं वो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक फार्मेसी से ही लेनी चाहिए। इसकी प्योरिटी टेस्टिंग जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड से होनी चाहिए। इसकी हैवी मेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर शोधन प्योरिफिकेशन 7 साइकिल्स की बताते हैं वो होनी चाहिए। और
इफ गोल्ड एडमिनिस्टर्ड इम्प्योर, वो ठीक नहीं है। इवन कोई भी मेडिकेशन, अभी इतना बड़ा हादसा होके चुका कफ सिरप पे, तो कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी मेडिसिन है, अगर वो उसमें इम्प्योरिटी है तो वो कैसे भी कोई अच्छा काम नहीं करती। सो इसके सेफ्टी प्रोफाइल ये है कि दिस इज वेल टॉलरेटेड व्हेन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मेथड्स एंड इट इज सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। इट इज नॉन साइटोटॉक्सिक, इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉन साइटोटॉक्सिक, एंड इनकी जो ब्लड कंपैटिबिलिटी है इट इज कंफर्म्ड। अब पुष्य नक्षत्र का ट्रेडिशन ये है कि हमने जो देखा, पुष्य नक्षत्र में भी देने से इसका लाभ बहुत है, जो कि पहले हम लोगों ने बताया कि 30 डेज 180 डेज तक दे सकते हैं, लेकिन केवल अगर साल में 27 पुष्य नक्षत्र पे भी हम देते हैं तो उसके असर बहुत अच्छे हैं। अभी एक टेस्टिमोनियल है तो आई थिंक यू विल एंजॉय। डॉक्टर प्रवीण कटियार हैज़ बीन हेल्पिंग मी माई जर्नी इन कानपुर। मैंने AKTU में जब सर थे तब से कोविड आया था, तब से स्टार्ट किया था इसको, लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड चाहिए। मेरा वो रखा हुआ है ना उसमें। इसका रोल इन प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक केयर के स्वनप्राशन अलाइज विद द WHO's emphasis on preventive health care. Even WHO says कि prevention is more important, और ये उसको पूरा करता है। And early childhood interventions for optimal development and disease prevention. बच्चे में बाद में जाकर हम उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को लें, उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, उससे अच्छा ये है कि इसको हम शुरू से ही बच्चे को दें, यानी कि जब वो पैदा होता है तब एक बार, उसके बाद 6 महीने के बाद से बराबर इसको हम दें। तो इसकी जो प्रिवेंटिव एप्लीकेशन है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन स्ट्रेंथन्स इम्यून रिस्पॉन्स बिफोर इन्फेक्शन अकर, न्यूरो डेवलपमेंट सपोर्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एनहांसेस द nutrient absorption and utilization, infection prevention reduces frequency of common childhood illness। वो आगे आप टेस्टिमोनियल्स में भी देखेंगे कैसे वो सब बता रहे हैं, और वो ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही लिए हैं। ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन प्रमोट्स हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो डिलेड माइलस्टोन्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो बाद में भी हम इसको दे सकते हैं, पर अगर पहले से देते हैं तो सारे माइलस्टोन्स भी बिल्कुल ठीक से रहते हैं। स्ट्रेस अडेप्टेशन हेल्प स्टूडेंट अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो ऐसे कुछ बच्चे मेरे पास आए जिनको कि कभी हंसते ही नहीं थे और चुप रहते थे, तो उन्होंने जब इसको लिया, आगे टेस्टिमोनियल आप देखेंगे, तो उन बच्चों में बहुत चेंजेस आए और वो स्वस्थ तो रहने ही लगे, साथ में वो खुश भी रहने लगे। अब ये 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोपनयन, जात कर्म संस्कार। तो मैं गर्भाधान से शुरू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्री कंसेप्शनल अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं, डिटॉक्स कर देते हैं, पंचकर्मा कर देते हैं, तो जो दोनों जने हैं जो आगे लेटर लाइफ में कंसेप्शन के लिए जाते हैं, उनकी ओवा और स्पर्म दोनों अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, तो जो प्रोजेनी होती है वो भी अच्छी होती है और उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। पुंसवन संस्कार में 2 महीने के बाद, ये पहले ये था कि ऐच्छिक संतान के लिए होता है, यानी लड़का या लड़की के लिए, परंतु इसकी में नस से हम लोग नाक के द्वारा मेडिकेशन देते हैं और इससे जो है वो बच्चा स्वस्थ होता है। साथ में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैं और जो बच्चों की जो स्वास्थ्य है, दोनों के ऊपर ही इसका असर पड़ता है। सीमंतोन्नयन में हेयर पार्टिंग या बेबी शावर जिसको कहते हैं, जिसमें आजकल बेबी शावर में आपको इनविटेशन मिलता है तो उसमें बहुत सारे म्यूजिक, डांस, गाना, खाना पीना ये सब होता है, बट बेसिकली इट वाज यूज्ड टू गिव गुड वाइब्स एंड न्यूट्रिशन टू द मदर एज वेल एज द चाइल्ड। इसके बाद आता है जातकर्म संस्कार, जो कि यहाँ से स्वर्ण प्राशन शुरू होता है। जैसे ही नाला छेदन होता है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड क्लिपिंग होती है, उसी समय जो घर के बड़े होते थे या जो वहाँ पर टेक केयर करने वाली लेडी होती थी, वो पत्थर के ऊपर सोडा, घी और मधु को घिसकर बच्चे को उसी समय चटा देती थी, क्योंकि उस समय जब शुरुआत थी तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स और पहला इंजेक्शन लगा दिया, ये सब नहीं होता था और बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करते थे तब। तो इस चीज़ को जब अब लागू करते हैं तो उसके असर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके बाद के और 16 संस्कार हैं, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतन, समावर्तन और विवाह इत्यादि। तो ये सारे साइंटिफिकली इनको किया जाता था और संस्कार में मंत्रों का यूज होता था।
और ये मंत्र जो है वो हर स्टेज में वाइब्स अच्छे देते थे और उसको पूरी खूबसूरती से उस को निभाया जाता था। तो यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी फुल ऑफ वाइब्रेशंस होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि प्रसाद भगवान को चढ़ा दो उसके बाद भोजन करो। तो हम लोग जो दवा बनाते हैं उसमें भी बराबर से मंत्रों को चलाते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साउथ की कंपनी की दवा लूँ, क्योंकि उसमें वो लोग विधिवत कलेक्शन से लेकर और बनाने तक में मंत्रों का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को इन षोडश संस्कारों को दोबारा से वापस लाना चाहिए, जिसमें कि स्वर्ण प्राशन हमने निकाला है। अ, अब इसके अंदर जातकर्म संस्कार मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही बेबी का नाला छेदन हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप किया, उसी समय बच्चे को दे दिया जाता है। उसके बाद उसमें लेहन है, लेहन में और भी सारी मेडिसिन्स होती हैं। बच्चे को चटाया जाता है अगर लैक्टेशन अच्छा नहीं हो रहा है या मदर को कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय भी ये जो लेहन कर्म है वो किया जाता है एज़ अ सप्लीमेंट्री फीडिंग। इसमें जो डोसेज गाइडलाइंस है वो 0 टू 1 ईयर 15 मिलीग्राम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 1 टू 3 इयर्स में 20 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म, 3 टू 5 में 25 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म और 5 टू 12 इयर्स में 30 मिलीग्राम भस्म। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस में ये एक तो ये रसायन काल जिसको कि हम कहते हैं जब सूरज उदय हो रहा हो, कायदे से उस समय देना चाहिए और सूर्यास्त के पहले तक दे ही देना चाहिए, क्योंकि कैंप्स वगैरह एकदम सूर्य उदय के साथ बच्चों को पेरेंट्स नहीं ला पाते। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब सूर्यास्त हो उसके पहले ही दे दें। दूसरा प्रॉपर हिस्ट्री लेना चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री शुड बी टेकन कि बच्चे को कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, वात और पित्त का अगर कोई रोग है तो ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वजत्रुगत यानी ईएनटी का कोई प्रॉब्लम या कफ भरा हुआ बॉडी में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग पहले उसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद ही उसका स्वर्ण प्राशन करते हैं। तो अभी हमने बताया कि इसको 30 डेज़ तक दे सकते हैं, 180 डेज़ तक, पर इसकी जो हमने आयु रखी है वो 16 साल तक हम लोग उसको दे सकते हैं। इन्फेंसी में जैसे बर्थ हुआ और 1 साल तक ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से और वल्नरेबल इम्यून सिस्टम सपोर्ट है इसका। जातकर्म संस्कार हमने आपको बता ही दिया। 1 से 16 साल में जनरल हेल्थ प्रमोटर की तरह काम करता है और इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है। वो देखने में आ जाता है क्योंकि बच्चा आप देख पाते हैं कि उसका क्या है इंटेलिजेंस, और उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ग्रो करते बच्चे में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है और 12 इयर्स के ऊपर एफ्रोसेडियाक जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम उसके 16 साल के ऊपर के जितने भी बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, उनमें हम देख पाते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन ये स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेज एक्टिविटी, एनहांस करता है फेगोसाइटोसिस और टी और बी सेल फंक्शन को इंक्रीज करता है। इट मॉडिफाइज इम्यून रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। न्यूरोप्रोटेक्शन में जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी प्रूव दैट दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द नैनो पार्टिकल्स दे एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट. They have got antioxidant properties, so protects the neurons and it improves the cognitive functioning, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी रिसर्च बताते हैं कि जो इसका 28 टू 35 nm का जो साइज नैनो पार्टिकल का आया है निकल के, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। इसमें जो हम घी यूज़ करते हैं वो मैंने जैसे पहले बताया सूक्ष्मगामी होता है, वो छोटे से छोटे सेल तक आराम से पहुँच के जो और भी हम उसमें जड़ी-बूटियाँ ऐड करते हैं, जैसे हमने गिलोय कभी ऐड करी, ब्राह्मी ऐड करी, बचा ऐड करी, तो वो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ है उसको भी वहाँ तक पहुँचाता है। साइंटिफिक एविडेंस है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स शो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन पेरिटोनियल माइक्रोफेजेस, इट इंक्रीजेस टोटल प्रोटीन्स एंड सीरम आईजीजी लेवल्स, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। गोल्ड फाउंड इन प्लेसेंटा एंड न्यूबॉर्न लिवर बर्थ, ये रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारे इसमें जब हम आयुर्वेदा में एंटीनेटल केयर कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की अलग-अलग मेडिकेशन होती है। जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें हम लोग स्वर्ण बसंत मालती देते हैं। तो मदर के वूम्ब से ही वो हम उसको इम्यूनिटी को उसको हम इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम लोग उसको लेहन कर्म के द्वारा उसकी इम्यूनिटी को रेज़ करते हैं। तो जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, वो जो रिसर्चेज़ हुई हैं उसमें उन्होंने देखा कि न्यूबॉर्न के जैसे कहीं मॉर्टेलिटी किसी कारण से कुछ हुआ कहीं भी, तो उन्होंने देखा कि ये न्यूबॉर्न के लिवर वगैरह में भी मिलता है। और जो कॉग्निटिव स्टडीज़ हैं उसमें ये देखा गया कि जो इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये इम्प्रूव्स द कॉग्निटिव फंक्शंस, जो आईक्यू स्कोर्स हैं वो बढ़ते होते हैं इन बच्चों में।
मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी टी वेले, गुडी, ठाकुर एंड नाडकर्णी, पनमाद एंड काले, जिन्होंने कि नैनो पार्टिकल पे रिसर्च करके इसके साइजेस को बताया, जो कि मैंने बताया जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ ये काम करते हैं। और हम लोग जो अब स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स को हम लोग बराबर से देख रहे हैं कि जो काश्यप संहिता में लिखा था वो बिल्कुल अच्छा रहा। और मेरा तो जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को दिया है वो सब बहुत खुश रहे, बहुत इन्फेक्शन प्रोन नहीं रहे। उसके आगे टेस्टिमोनियल्स हैं, तो एक दो मैंने लिए हैं बस। इसमें बस सेफ्टी और क्वालिटी गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम स्वर्ण भस्म ले रहे हैं वो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक फार्मेसी से ही लेनी चाहिए। इसकी प्योरिटी टेस्टिंग जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड से होनी चाहिए। इसकी हैवी मेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर शोधन प्योरिफिकेशन 7 साइकिल्स की बताते हैं वो होनी चाहिए। और इफ गोल्ड एडमिनिस्टर्ड इम्प्योर वो ठीक नहीं है। इवन कोई भी मेडिकेशन, अभी इतना बड़ा हादसा होके चुका कफ सिरप पे, तो कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी मेडिसिन है, अगर वो उसमें इम्प्योरिटी है तो वो कैसे भी कोई अच्छा काम नहीं करती। सो इसके सेफ्टी प्रोफाइल ये है कि दिस इज वेल टॉलरेटेड व्हेन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मेथड्स एंड इट इज सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। इट इज नॉन साइटोटॉक्सिक, इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉन साइटोटॉक्सिक, एंड इनकी जो ब्लड कंपैटिबिलिटी है इट इज कंफर्म्ड। अब पुष्य नक्षत्र का ट्रेडिशन ये है कि हमने जो देखा पुष्य नक्षत्र में भी देने से इसके लाभ बहुत है, जो कि पहले हम लोगों ने बताया कि 30 डेज 180 डेज तक दे सकते हैं, लेकिन केवल अगर साल में 27 पुष्य नक्षत्र पे भी हम देते हैं तो उसके असर बहुत अच्छे हैं। अभी एक टेस्टिमोनियल है तो आई थिंक यू विल एंजॉय। डॉक्टर प्रवीण कटियार हैज़ बीन हेल्पिंग मी इन माई जर्नी इन कानपुर। मैंने एकीट्यू में जब सर थे तब से कोविड आया था, तब से स्टार्ट किया था इसको, लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड चाहिए। मेरा वो रखा हुआ है ना इसमें, हाँ महीना या साल हो। मुझे 1 साल हो चुका है दोनों बच्चों को आए हुए कवर क्लब। कब हर कुछ नक्षत्र में लगभग इस हरी में आते हैं, हर महीने था। तो अब बच्चों में क्या फर्क आपको दिखा, सबसे पहले बिटिया का बताइए। बच्चे बाकी पूरी और पेट अच्छा है इसका, पढ़ाई दोनों अच्छी हुई। और पढ़ने में पहले से बेटर हो गई, पढ़ाई और की तब पतली आई थी जगह आई थी, और एक किस्सा, और उसका जो एक स्टेटस आता था हमेशा दुखी सी रहती थी, कोई अब स्माइल करना हर स्माइल करती है। और ये बेटा भी, अच्छा। बेटे का क्या हाल है? ये इनका भी नैतिक इसका भी ये तेल इसे तो अच्छा है, पेट पर बहुत कम था इसका, हम अच्छा देख है। और ये बार बार जो बीमार पड़ने आए ये सब हम नहीं, ये इसके से देखते उसका काम कर रहा है। जब बच्ची दिखे आपको पे पड़ती का, हम लोगों को स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए बच्चों का। बिल्कुल कराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो कराना चाहिए और होना चाहिए बहुत। थैंक यू। चंद्रनगर में जो आरोग्य टीम, ये एक दिस सेकंड केस, इसमें बच्ची जो है वो क्लियर नहीं बोलती थी, उसके जो भी शब्द वो बोलती थी वो अनक्लियर होते थे। तो हम लोगों ने इसको दूसरी कंठ औषधियाँ दी, जवान प्रेस के वचा और घिसने के लिए दिया, बट साथ में ये पुष्य नक्षत्र पर आती थी, तो इसका तब से ये बच्चे स्वर्ण प्राशन पी रहे हैं। आपका क्या नाम है? वीना। आपका क्या नाम है? अंकिता। अंकिता को एक दिक्कत थी कि इसकी स्पीच जो थी वो क्लियर नहीं किया। बताओ तो ही बोल नहीं पा रही थी, साफ साफ बोल नहीं पाती थी। जब से दवा पीने लगी तब से साफ। वो अंकिता वर्षा ऋतु बोल के सुना। सारी और इनकी जो याद करने की कैपेसिटी है, कंसंट्रेशन, बैठते एक जगह पढ़ाई अच्छे से करते हो। हाँ सबकी। बार बार बीमार पड़ना, जैसे अगर बीमार पड़ेगी तो जल्दी ठीक हो जाना, ऐसा कुछ चेंजेस दिखा आपको? हाँ खूब खुश हो दवा पी के? अच्छा लगता दवा पीने के बाद? और एक कुछ बात बोल के दिखाओ। सीताराम, तो इनकी आवाज क्लियर हुई है, ये बराबर पुष्य नक्षत्र में दवा पीती हैं, साथ में इनके लिए जो कंठ है औषधियाँ हैं वो हम इनको दे रहे हैं। साथ में हमने इनको वचा घर्षण के लिए दी थी, टंग के ऊपर हंसपति पारा का सेप्टा पूरा इनके प्रॉब्लम के हिसाब से वो चीज़ें दी। और
पुष्य नक्षत्र में बराबर उन्होंने स्वर्णप्राशन किया। थैंक यू। ये जहाँ पर बाल गृह में प्रवीण भैया ही स्टार्टेड मी वो देयर, सो इनका एक राजकीय बाल गृह बालक कल्याणपुर कानपुर नगर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। यहाँ पर पिछले क्या वर्षों से आयुर्वेदा सार्यमान वंदना पाकेटमैन लगातार हर माह उस व्यक्तित्व पर आती और बच्चों को स्वर्णप्राशन कराती है। स्वर्णप्राशन का उनकी ये एक ऐसी औषधि है जिसमें मधु, स्वर्णभाष्म आदि कई जड़ी बूटियों को मिला करके वो खुद बलिक कर पाते। और मैंने प्राय ये देखा है कि जब से बच्चे इस औषधि का सेवन कर रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है। और जो बच्चे बेसिकली मंद बुद्धि के, उनकी सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि आई। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वर्णप्राशन इस संस्था तक ही न सीमित है और जिले की संस्था के अलावा अगर प्रदेश की हर संस्था तक ये स्वर्णप्राशन वाली गति से तो बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ना सिर्फ यहाँ संस्था के बच्चे, अभी तो घर के हर बच्चों के लिए मैं ये बात करूँगी कि जो भी अपने घर में छोटे बच्चे हैं उनको स्वर्णप्राशन कराया जाए। स्वर्णप्राशन के साथ साथ मैम यहाँ पर बच्चों को किस ऋतु में क्या सेवन करता है, क्या क्या सावधानियां बरतती हैं, इस विषय में भी अपनी जानकारी देती हैं। और उस माह में कौन सा फल उपयोगी है, क्या और खाना चाहिए, वो खुद भी लेकर के आती हूँ और बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी देती है। तो मैं वंदना पाठक मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल कर रखी है जिससे ये निराश्रित बच्चों का को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर। धन्यवाद। इसके बाद कुछ पिक्स हैं जो अलग अलग जगहों में हम लोग अंडर प्रिविलेज को भी देते हैं और कैंप्स में करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी निःशुल्क ओपीडी चलती है, वहाँ भी बच्चे आते हैं। यहाँ डॉक्टर प्रवीण कटियार खड़े हुए हैं, मेरी मदद कर रहे हैं इस समय। यहाँ अनुराग खड़े हैं, ये भी हेल्प करते हैं। ये अलग अलग जगहों पर है, कभी क्लिनिक में, कभी कैंप में। ये मेरे नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं जो आ जाते हैं हेल्प करने। और हम लोग बच्चों को साथ साथ पढ़ाई का मटेरियल, कपड़े ये सब भी देते हैं, वो खुश होकर जाते हैं। कुछ ऋतु फल जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी देते हैं साथ में, और बच्चे डांस भी करते हैं, एंजॉय करके वहाँ जाते हैं। इवन मुस्लिम्स भी बहुत विश्वास करते हैं और वो भी कराते हैं स्वर्णप्राशन। इतने सारे आयुर्वेदा डे, योगा डे हो रहे हैं, मुझे लगता है हर पुष्य नक्षत्र को स्वर्णप्राशन डे घोषित कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसको जरूर लाना चाहिए अपने हेल्थ उस पे रिजीम में। ये बाल गृह का है। बच्चे सीधा सुनने के बाद अपना हाथ ऊपर करते हैं कि हाँ हम फॉलो करेंगे, और हमने अपनी अपनी डोज ले ली है। इनकी मदर्स, पेरेंट्स सब आते हैं साथ में। ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो कैंपस में रहते हैं, उनको भी हम लोग स्वर्णप्राशन करते हैं।
वो सारी स्वर्ण के पहले धन्वंतरी का पूजन होता है। अब नगर के बहुत सारे डॉक्टर्स इंस्पायर होके अपने अपनी कैंप में भी उन्होंने स्टार्ट किया है कि कोई कुछ डोनेशन पे कुछ फ्री में स्वर्ण उन लोगों ने स्टार्ट किया है। ये कैंपेन शुरू करी है कि स्वर्ण हर बच्चा करे और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्वर्ण जरूर कराएं, कभी 1 कभी 2। जब 2 दिन का होता है तो उसमें मैं उस समय स्वर्ण बनाती हूँ। आप देख रहे हैं सभी क्लास के बच्चे हैं, सब अंडर प्रिविलेज से लेके फ्लुएंट सभी लोग ले रहे हैं और सभी धर्मों के लोग। सो आयुर्वेद में वरदान है स्वर्ण। तो कंक्लूजन इज दैट इट इज़ मल्टी डायमेंशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। गवर्नमेंट में जरूर उसको अप्लाई कर देना चाहिए। इसके बेनिफिट्स एंड इम्यूनिटी, कॉग्निटिव ग्रोथ और लॉन्गेविटी है। अभी हमने सब सुना। साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको, और उसका सेफ्टी इंश्योरमेंट जरूर कर लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एज और ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द वेदर्स एंड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन। मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस जर्नी में मदद की। और आप ऊपर आम्र पल्लव देख रहे हैं, ये एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए जगह जगह बंधनवार में आम के पल्लव लगाए जाते हैं। तो हम अपने रूट्स में अगर जाएंगे और जाकर उनसे अच्छी चीज़ें निकाल कर लाएंगे तो हम बहुत सारी ऐसी जिनकी अनआंसर्ड, जिसको कहते हैं इडियोपैथिक डिजीज़, या अनआंसर्ड है, ये क्यों ऐसे फैल रहा है क्या नहीं, उन सब से हम रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पीडियाट्रिक प्रिवेंशन के बारे में बोला गया था, तो मैंने स्वर्ण के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण भैया फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर वंदना पाठक। आपने स्वर्ण भस्म के बारे में जो इतनी गहन जानकारी दी, इससे हमारे सभी श्रोतागण लाभान्वित होंगे, और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई जानकारी थी। एंड this is a wonderful, and I hope it should be popular and more people should use it. Anything you want to add? I congratulate ma'am and thank ma'am for enlightening us with the knowledge of Ayurveda and Swan Prashan for pediatric age group. Thank you. Announcement regarding the 2 awards which the committee has decided. One is International Award of Excellence in the field of education, which goes to Professor Vinay Pathak. And second is the Wellness Excellence Award in Ayurvedic Medicine, that goes to Dr. Mrs. Vandana Pathak.